Hello students, again we will discuss about the pharmacognosy 1 BP405T and the topic is primary metabolites which contains the carbohydrates and the carbohydrate containing drugs like acacia agar, tragacanth or the honey. So I Dr. Veena Devi Singh working as an assistant professor in NIT Pharmacy Institute Greater Noida. So today we will discuss about the topic 2 of unit 5 in pharmacognosy 1. What is the primary metabolites? Initially we have to understand the what are the primary metabolites, what are the different classification of that particular carbohydrates or the types of the carbohydrates or the plants which contains the carbohydrates and their biological source, chemical constituent, preparation or the uses. So all these things we will discuss in this unit. Okay. So what is the primary metabolites? So the primary metabolites are the type of the metabolites which is directly involved in the normal growth, development और the reproductions. तो किसी भी plants में primary metabolites जो होते हैं type of the metabolites होते हैं because the plants contains the two type of the metabolites, primary और the secondary metabolites. तो primary metabolites which are responsible for the growth, development और the reproductions and the secondary metabolites directly involved नहीं होते हैं, they are not directly involved in the normal growth, development or the reproductions, but they can be used as a protection और the ecological functions प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो यूजुअली जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं दे परफॉर्म अ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द ऑर्गेनिजम्स. फिजियोलॉजिकल फंक्शंस मीन्स नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शंस के लिए वी कैन यूज द primary metabolites and the example of primary metabolites are carbohydrates, proteins, amino acids or the lipids. In the carbohydrate containing drugs are the acacia, agar, tragacanth or the honey. So these four drugs are in your syllabus. So we will discuss about the all these four carbohydrate containing drugs like acacia, agar, tragacanth or the honey. So what is carbohydrates? So carbohydrate is an important class of the organic natural product. It is a group of the compound that contain carbon, hydrogen और the oxygen. So generally carbohydrates को हम लोग कैसे लिखते हैं? CHOH means you can see that कि it contains the carbon, it contains the hydrogen or it contains the oxygen. So generally carbohydrates are the group of the compound composed of the carbon, hydrogen or the oxygen and they are expressed by the formula CH2ON. Okay. So CH2ON we can also write down like that. ठीक है, that is the hydrates of the carbons. So it is also defined as a polyhydroxyaldehyde or the ketones or the compounds that on hydrolysis produces either of the above, means it may be produced aldehydes or the ketones after hydrolysis. Okay. So carbohydrates are the first or the primary product of the photosynthesis. तो जब photosynthesis होती है plants में, so आप देखते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स की photosynthesis होती है and they will form a C6H12O6 that is glucose. So glucose is the type of the carbohydrate. Okay. So glucose is the type of the carbohydrates. So we can say that कि carbohydrates are the first or the primary product of the photosynthesis. तो जब हमारे plants में कोई भी photosynthesis होती है और जो primary product form होता है that is carbohydrates. The functions of the carbohydrates are they are reserve material of the plants. So plants में ये रिजर्व मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं लाइक स्टार्च एंड द एनिमल्स में ग्लाइकोजन्स. ओके, दे सप्लाई एनर्जी एंड आर स्ट्रक्चरल एंड स्केलेटल सब्सटेंसेस ऑफ द प्लांट दैट इज सेल्यूलोज. सो एनर्जी प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शंस जो होते हैं और स्केलेटल सब्सटेंसेस जो होते हैं प्लांट्स में इट कैन बी मेंटेन्ड बाय द कार्बोहाइड्रेट्स एंड these carbohydrates are the cellulose. Okay. Now classification of the carbohydrates, so generally they are categorized into the two categories, simple or the complex. So in the simple you can say that is sugar
and the complex you can say that is polysaccharides. In the simple sugars or the sugars, they are categorized into two categories, monosaccharides or the disaccharides. So monosaccharides is what? So monosaccharides are the single sugars that includes glucose, fructose or the galactose. Okay, so we can obtain the monosaccharides like glucose, fructose or the galactose. Disaccharides are the double sugar units that include sucrose, maltose or the lactose, whereas polysaccharides can be used as a storage materials or the structural substances. So for the storage, there may be a two type of the polysaccharides, glycogens or the starch. So they are the storage carbohydrates. Animal cells stores glucose as a glycogen and the plant cells stores glucose as a starch. So animal cells की बात करेंगे तो वो स्टोरेज मटेरियल की तरह हमारी ये कार्बोहाइड्रेट्स काम करते हैं. तो एनिमल सेल्स में जो स्टोरेज होता है ग्लूकोज का किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन. ठीक है. और प्लांट सेल्स में जो स्टोरेज होता है, ठीक है, वो किस फॉर्म में होता है ग्लूकोज का? स्टार्च के फॉर्म में. ठीक है. स्ट्रक्चरल की बात करेंगे तो स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं दे आर सेल्यूलोज और दी काइटिन. ठीक है. तो काइटिन और दी सेल्यूलोज आर दी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स. तो सेल्यूलोज फॉर्म्स द फैब्रिक ऑफ मैनी सेल वॉल एंड द काइटिन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द एक्सोस्केलेटन ऑफ द मैनी एंथ्रोपोड्स. ठीक है. तो जनरली जो हमारा सेल्यूलोज होता है वो फैब्रिक बनाने का काम करता है, सेल वॉल में कंटेन होता है जहाँ से हम लोग फैब्रिक बनाते हैं. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट की कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग वी कैन से दैट इज़ द फाइबर्स. ठीक है. सो हमने देखा था पहले ही. और काइटिन जो होता है साइक्लो एक्सोस्केलेटन के फॉर्म के लिए यूज़ होता है. ठीक है. नाउ द मोनोसैकेराइड्स आर दी शुगर्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज. मतलब मोनोसैकेराइड्स ऐसे होते हैं जो सिंगल शुगर्स ही रह जाते हैं, वो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं. ठीक है. दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स इन शुगर मॉलिक्यूल्स. तो शुगर मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है. इफ इट कंटेन्स द 2 कार्बन एटम दैट इज बायोसिस. इफ इट कंटेन्स 3 कार्बन एटम दैट इज ट्रायोसिस. 4 carbon atom, so that is the example of 4 carbon containing monosaccharides are erythrose, that is known as tetrose. ठीक है. पेंटोसिस की बात करेंगे तो अरिबिनोज, राइबोज और दी जाइलोज. हेक्सोसिस में फ्रक्टोज और दी ग्लूकोज. तो ग्लूकोज से सभी लोग बहुत अच्छी तरह से अवेयर हैं कि 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, मोनोसैकेराइड्स होते हैं. सो हियर वी कैन से दैट कि कार्बोहाइड्रेट्स इज द पॉलीमर मेड फ्रॉम द monosaccharides. An example of monosaccharides are glucose, fructose or the galactose. So these are the structure of the glucose, fructose and the galactose. Similarly, when monosaccharides link together by the condensation and it will form a polysaccharides. ठीक है. जब मोनोसैकेराइड्स मिलके डाइसैकेराइड्स बनाते हैं और मोर देन जब शुगर मॉइटीज़ प्रेजेंट हो जाती है, मोर देन 2 शुगर मॉइटीज़ प्रेजेंट होती है, मतलब डाइसैकेराइड्स के बाद जो भी आएगा दैट इज़ ट्राई टेट्रा होते हैं. सो विच इज़ नोन एज पॉलीसैकेराइड्स. ओके. सो एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स की क्या है हमारे? स्टार्च, ग्लाइकोजेंस और दी स्टार्च, सेल्यूलोज. ओके. सो फॉर्मेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स. तो स्टार्च, glycogens or the cellulose, so we have already discussed that ki starch can be used as a storage in the energy store in the plants, glycogen energy storage in the animals और दी सेल वॉल का कंपोनेंट्स जो प्लांट्स में जो सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं उसमें जो मेनली कंपोनेंट होता है दैट इज आर सेल्यूलोज. ओके. नाउ first plant which contains the carbohydrate that is the acacia. So the synonyms of acacia is gum acacia, gum arabic or the Indian gum. The biological source, it is dried gummy exudation obtained from the stems and branches of the acacia arabica belongings to the family लेग्यूमिनेसी. तो मेनली अकेशिया जो होता है लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है. इसका जो बॉटनिकल नेम होता है दैट इज़ अकेशिया अरेबिका. ठीक है. तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं ये स्टेम्स होते हैं, इसमें एक गम टाइप का एक्सुडेशन होता है गम का. तो वो जो एक्सुडेशन हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज दी गोंद. ठीक है. तो आपने गोंद सुना होगा
तो गोंद जो होता है और गोंद के लड्डू भी जो बनते हैं, ठीक है, तो जनरली उसको हम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो इस अकेशिया में जो गोंद होता है दैट इज़ जो प्लांट्स में जो गोंद होता है अकेशिया अरेबिका के, दैट इज़ अकेशिया। ओके, सो ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे कि कहाँ पे अकेशिया सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो मेनली इट इज़ फाउंड इन दी सुडान, India, Morocco and the Africa, and 85% of the world supply is from the Sudan। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ से ऑब्टेन होते हैं हम लोगों को, सूडान से ऑब्टेन होते हैं। द कल्टिवेशन एंड कलेक्शन की बात करेंगे तो गम्स इज कल्टिवेटेड फ्रॉम द वाइल्ड ग्रोन plants made free of bark or the foreign organic matters, dried under the sun and bleached partially। so इसमें हम लोग क्या करते हैं कि initially we can obtain और cultivated from the gums को हमने cultivated किया wild grown plant में, देन उसमें से हम लोगों ने उसके ब्रांचेस और स्टेम्स में उसका क्या हो रहा था, एक्सुडेशन हो रहा था, तो वहाँ से हमने उसको स्क्रैप आउट किया। ठीक है, उसके जितने भी फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर्स थे उनको रिमूव आउट कर लिए, उसका सन ड्राई किया और उसको ब्लीच किया पार्शली, ताकि उसका अपीयरेंस बहुत अच्छा हो सके, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया ताकि हम उसको मार्केटली और कमर्शियलाइज पर्पज़ के लिए और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए वी कैन यूज़। ओके, नाउ डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो यू कैन सी दैट कि इसका जो कलर होता है क्रीम और ब्राउन इन कलर, तो इसमें ब्राउन कलर भी दिख रहा है, हल्का सा क्रीम कलर भी दिख रहा है। ऑर्डर जो होता है इसका ऑर्डर लेस होता है, कोई ऑर्डर नहीं होती है, म्यूसिलेजिनस टेस्ट होता है। ठीक है, आपने वैसे भी खाया है तो आपको पता होगा कि इसका टेस्ट कैसा होता है, तो म्यूसिलेजिनस काइंड ऑफ दी इसका टेस्ट होता है। साइज एंड शेप जो होते हैं इरेगुलर ब्राउन टीयर्स ऑफ वेरिंग साइज, तो इसका जो टीयर्स होता है जो ब्रांचेस से निकलता है उसकी जो साइज़ होती है वो एक फिक्स नहीं होती है कि ये इतने साइज़ का होता है, कुछ वो टीयर पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा एक्सुडेशन हो रहा है। कई बार छोटा होता है तो साइज़ जो होती है उसकी छोटी हो जाती है, कई बार बड़ा होता है तो बड़ी हो जाती है। ओके, नाउ solubility, तो it is soluble in the alcohol or the it is insoluble in the alcohol, mainly it is insoluble in the alcohol और soluble in the water। ठीक है, तो इसकी solubility जो होती है वाटर में अच्छी होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे तो it contains the main अरेबिन। ठीक है, तो अरेबिन it is a mixture of the calcium, magnesium and potassium salt of the arabic acid। so arabic acid on hydrolysis give L-arabinose or the L-rhamnose, and it also contains the enzymes like oxidase or the peroxidase। okay, uses की बात करेंगे तो it can be used as a demulcent, suspending agent or the emulsifying agent। ठीक है, तो आपने emulsions की जब प्रिपरेशन करते हैं तो आप देखते हैं कि we can add the one emulsifying agents, so it may be acacia or the tragacanth। okay, बाइंडिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ द माइक्रो एनकैप्सुलेशंस, तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन की प्रिपरेशन भी होती है तो उसमें भी वी कैन यूज़ द अकेशिया। नाउ सेकेंड ड्रग इज ट्रैगाकैंथ, तो ट्रैगाकैंथ भी उसी की स्पीसीज़ होती है, लेग्यूमिनेसी फैमिली से ही इसको भी ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है ऑलमोस्ट अकेशिया और दी ट्रैगाकैंथ की। तो जो अकेशिया होता है उसी के जैसा हमारा ट्रैगाकैंथ होता है, इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज अ कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग्स है, और इट कैन बी यूज्ड एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट और दी सस्पेंडिंग एजेंट। तो ट्रैगाकैंथ का जो सिनोनिम्स होता है गम ट्रैगाकैंथ और ट्रैगाकैंथा। बायोलॉजिकल सोर्स की इट इज़ अ ड्राइड गमी एक्सुडेशन ऑब्टेन्ड बाय द इंसिजन फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ द एस्ट्रागैलस गमीफर एंड देयर फैमिली इज द लेग्यूमिनेसी। ओके, सो एस्ट्रागैलस गमीफर से वी कैन ऑब्टेन, अकेशिया को हमने कहाँ से ऑब्टेन किया था, अकेशिया अरेबिका से। ठीक है, वो भी लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग कर रहा था। सेम एस्ट्रागैलस गमीफर भी एक प्लांट होता है जिसकी स्टेम और ब्रांचेस में गम लाइक का एक्सुडेशन होता है, जहाँ से हमको उसको इंसाइज करके उसको स्क्रैप आउट करके हम लोग उस गम को ऑब्टेन करते हैं, और उसकी जो प्लांट की जो फैमिली होती है दैट इज़ लेग्यूमिनेसी। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या सोर्स की बात करेंगे तो इंडिजीनस टू द ईरान, इराक, ग्रीस, टर्की, साइरिया। ठीक है, तो जनरली ये हमारे ईरान, इराक, ग्रीस, टर्की और दी साइरिया में ज़्यादा ऑब्टेन होते हैं। इन इंडिया में बात करेंगे तो पंजाब इज़ द एरिया वेयर अ फ्यू स्पीसीज ऑफ द ट्रैगाकैंथ आर फाउंड। नाउ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ट्रैगाकैंथ,
So it contains the main two constituent. First one is the tragacanthine and second one is the basorine. So tragacanthine contains 8 to 10%, tragacanth contains 8 to 10% of the tragacanthine, which is water soluble. Second active constituent is the basorine. It contains 60 to 70% in the tragacanth and they are water insoluble, and on the hydrolysis it gives the galactouronic acid और D-galactopyranose. ठीक है, सो ट्रैगाकेंथिन को हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं ट्रैगाकेंथ के, तो दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ट्रैगाकेंथिन और दी बैसोरिन. सो ट्रैगाकेंथिन क्या होता है 8 to 10% ही होता है और दे आर वाटर सॉल्युबल एंड वाटर insoluble gradient is what ingredient is what that is the basorine. It contains 60 to 70%. तो मतलब हमारा ज़्यादा क्या कंटेन हो रहा है, basorine हो रहा है. ठीक है, ऑन द हाइड्रोलिसिस क्या करते हैं, इट गिव्स द गैलेक्टोयूरोनिक एसिड और द गैलेक्टोपायरेनोज. ठीक है, यूजेस की बात करेंगे, सो इट कैन बी यूज्ड एज अ डिमल्सेंट और द इमोलिएंट, थिकनिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट और दी इमल्सिफाइंग एजेंट. सो हम लोग इसको डिमल्सेंट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, इमोलिएंट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, थिकनिंग एजेंट के फॉर्म में, सस्पेंडिंग और इमल्सिफाइंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं एज प्रीवियसली जैसा हमने अकेशिया में पढ़ा है. ठीक है, अब उसके बाद इसके यूजेस बताते हैं या हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ दी ट्रगाकेंथिन देखते हैं. सो इट कैन बी यूज टू रीगेन द स्ट्रेंथ इन दी पोस्ट प्रेगनेंसी. मीन्स हम जब गोंद के लड्डू बनते हैं, ठीक है, जो लड्डू बनते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, तो वो हमारे ट्रगाकेंथ के ही होते हैं. ठीक है, सो it can be used to regain the strength in the post pregnancy, improve burning sensation, prevent heat stroke, relieve constipation को relieve करने के लिए भी यूज़ होते हैं, boost your energy boosting के लिए भी, weight loss करने के लिए भी, heal माउथ अल्सर, माउथ में अगर हमको कुछ भी हो जाता है, ऑन दैट कंडीशन वी कैन ऑल्सो यूज़ द ट्रगाकेन, इफेक्टिव इन द माइग्रेन, गुड फॉर गट हेल्थ, हमारा माइक्रोबियल फ्लोरा को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ब्रेस्ट ऑग्यूमेंटेशन में यूज़ करते हैं, एंड गुड फॉर ग्लोइंग स्किन. तो स्किन की ग्लोइंग के लिए डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में भी हम लोग ट्रगाकेन को यूज़ करते हैं. उसके बाद थर्ड ड्रग है हमारी अगार, विच इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, दैट इज़ द जिलेटिन. ठीक है, द सिनोनिम्स ऑफ द अगार इज़ द जापानीज आइसिंग ग्लास. तो ये सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम्स में नंबर ऑफ टाइम्स पूछा भी जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जापानीज आइसिंग ग्लास किसका सिनोनिम्स होता है. तो मेनली अगार का जो सिनोनिम्स होता है दैट इज़ जापानीज आइसिंग glass, and it is also known as the vegetable gelatin. Okay, biological source की बात करेंगे तो it is a dried gelatinous substances obtained from the Xylidium amansi belongings to the family Xylidaceae. ठीक है, तो इसमें जेली लाइक प्रॉपर्टीज़ होती है, जेल लाइक प्रॉपर्टीज़ होती है. तो जनरली ये कहाँ से ऑप्टेन होता है, एक काइंड ऑफ दी ब्रू ग्रीन एल्गी होती है. ठीक है, उसमें से इसको हम लोग ऑप्टेन करते हैं. नेचुरल सोर्सेज, ये मराइन सोर्सेज भी बोल सकते हो. तो जेलिडियम अमानसी जो है उसका बॉटनिकल नेम है और उसकी जो फैमिली है दैट इज जेलीडेसी. ठीक है, तो जनरली जेलीडेसी से हम लोग इसको ऑप्टेन करते हैं. ज्योग्राफिकल सोर्सेज की बात करेंगे तो मेनली इट इज़ फाउंड इन द जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और द इंडिया, और कोस्टल रीजन ऑफ द वे ऑफ बंगाल्स में भी प्रेजेंट होता है. ओके, नाउ कलेक्शन एंड प्रिपरेशंस ऑफ अगार. सो जनरली हम लोग इसको एल्गी से ऑप्टेन करते हैं. ठीक है, तो एल्गी से ऑप्टेन करते हैं तो मराइन सोर्सेज होता है. मराइन सोर्सेज मीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओशियन में. ठीक है, तो एल्गीज आर ग्रोन ऑन बैम्बूज इन दी ओशियन. ओशियन के जो बैम्बूज होते हैं, ओशियन में जो बैम्बूज प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे ये एल्गी की ग्रोथ होती है, वहाँ से हम लोग इसको ऑप्टेन करते हैं. दीज आर स्क्रैप्ड, ड्राइड एंड शेकन टू रिमूव द फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक सैंड और दी सेल. ठीक है, तो जनरली हम लोगों ने बैम्बूज में इसने ग्रो किया, वहाँ से हमने उसको स्क्रैप आउट किया. स्क्रैप आउट करने के बाद उसको हमने ड्राई किया. ड्राई करने के बाद उसको शेक करके उसमें जितने भी फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर्स थे, लाइक उसमें सैंड था या सेल्स प्रेजेंट थे, क्योंकि हमने मराइन से ऑप्टेन किया तो उसमें सैंड भी ऑप्टेन होती है और शेल्स भी ऑप्टेन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो वो चीज़ें भी उसके साथ में
आ सकते हैं एज अ फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो उसको रिमूव कर लेते हैं, देन उसको हम लोग क्लियरली अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं, देन अगेन उसको एक्सपोज कराते हैं सन में। आफ्टर जब सन ड्राइंग हो जाती है उसके बाद उसको हम लोग बॉईल करते हैं 5 to 6 आवर्स। बॉईल करने के बाद फिल्टर्ड एंड ट्रांसफ़र टू दी वुडन ट्रफ, वुडन ट्रफ लेते हैं, वुडन ट्रफ में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आफ्टर कूलिंग जेली इज़ फॉर्म्ड, तो मतलब जब वो कूल हो जाता है उसके बाद जेल लाइक अपीयरेंस आ जाता है, तो हम लोग जेली को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो वुडन ट्रफ की जगह हम दूसरी चीज़ें भी लाइक पेट्री डिश भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर इन दी लैब। सो हम लोग वहाँ पे पेट्री डिश यूज़ करते हैं, और जनरली जो कलेक्टर्स होते हैं जो इसको कलेक्ट करते हैं वो लोग उसको वुडन ट्रफ यूज़ करके भी करते हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो दीज आर दी पॉलीसैकेराइड्स लाइक अगेरोज एंड दी एगेरोपैक्टिन्स। अगेरोज इज दी कंपोज्ड ऑफ दी गैलेक्टोज 3,6 एनहाइड्रस एल गैलेक्टोज 3 to 5% cellulose, 6% nitrogen containing substances. तो generally it contains the agarose or the agarocpactin. तो अगार में जो जेली के जो प्रॉपर्टी होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर अगेरोज और दी अगेरोपैक्टिन, ओके। उसके बाद यूजेस की बात करेंगे तो इट कैन बी यूज्ड इन दी प्रिपरेशन ऑफ द कल्चर मीडिया, इमल्सिफाइंग एजेंट, बल्क लग्जेटिव और इन दी प्रिपरेशन ऑफ द जेलीज। तो जितनी भी हमारी चॉकलेट्स होती हैं, जो भी फूड इंडस्ट्रीज़ में जो भी जेलीज होती हैं, तो जनरली अगार को भी यूज़ किया जाता है जेल की प्रिपरेशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि जितनी भी हमारी चॉकलेट्स या जेल्स का फॉर्मेशन होता है बाय यूजिंग दीज अगार्स, ओके। सो जनरली कल्चर मीडिया में भी यूज़ करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं अगार को। नाउ इसके हेल्थ बेनिफिट्स देखते हैं, तो एड्स इन वेट लॉस, मेक्स बोन स्ट्रॉन्गर, डाइजेस्टिव हेल्थ में यूज़ करते हैं, ब्रेन हेल्थ को में यूज़ करते हैं, प्रिवेंट एनीमिया, एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, स्किन को हाइड्रेटेड करने के लिए करते हैं, जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है तो उसको हाइड्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं, लोअर कोलेस्ट्रॉल, जो फैटीज़ लोग होते हैं, ठीक है, फिर फैट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज़ करने के लिए वी कैन यूज़ दी अगार। ट्रीट जॉन्डिस इन इन्फेंट्स, इन्फेंट्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, अगर उसमें पीलिया हो जाता है, उनको जॉन्डिस हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए वी कैन यूज़ दी अगार। इट रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल्स, टू डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, सो वी कैन यूज़ दीज अगार्स टू रेगुलेट दैट ब्लड शुगर लेवल, एंड इट मेक्स मसल स्ट्रॉन्गर, तो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वी कैन यूज़ दी अगार। लास्ट ड्रग दैट इज़ दी हनी, तो द सिनोनिम्स ऑफ द हनी दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द मधु और द मेल, ठीक है। तो हनी को सब जानते हैं, मधु बोलते हैं, ठीक है, शहद भी बोला जाता है, हिंदी में इसको शहद बोलते हैं। द बायोलॉजिकल सोर्स, तो हनी इज शुगर सीक्रेशन डिपॉजिटेड इन द हनी कॉम्ब बाय द बीज एपिस मेलिफेरा। सो वन काइंड ऑफ द स्पीसीज दैट इज द एपिस मेलिफेरा एंड अदर स्पीसीज ऑफ द एपिस बिलोंग्स टू द फैमिली एपिडी। एपिडी फैमिली के जो डिफरेंट एपिस मेलिफेरा और डिफरेंट काइंड्स ऑफ द बीज होती हैं, उनके हनी कॉम्ब से वी कैन ऑब्टेन, ओके। सो हनी क्या होता है, शुगर सीक्रेशन होता है जो नेक्टर्स, फ्लावर्स के नेक्टर से लाते हैं इंसेक्ट्स, और कहाँ पे लाके छोड़ देते हैं, हनी कॉम्ब में लाके छोड़ देते हैं। जो बीज होती हैं वो कौन सी बीज होती हैं, एपिस मेलिफेरा, और उन्हीं के कॉम्ब में प्रेजेंट होता है, उन्हीं के मधुमक्खी के छाते में प्रेजेंट होता है, इसलिए वहाँ से हम लोग उसको ऑब्टेन करते हैं। और वो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो होती हैं किस स्पीसीज़ की होती हैं, एपिस मेलिफेरा होती हैं, या एपिस मेलिफिका भी एक स्पीसीज़ है, वहाँ से भी हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, और उसकी जो फैमिली होती है दैट इज़ एपिडी। एंड जोग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे तो हनी इज़ प्रोड्यूस्ड इन दी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया और दी इंडिया। तो ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड में फेमस है और सब जगह ही मोस्टली प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ द हनी की बात करेंगे तो नेक्टर्स ऑफ द फ्लावर्स कंटेन 25% सुक्रोज और दी 75% वाटर। तो जनरली जो हमारा हनी होता है, जो फ्लावर्स के नेक्टर्स होते हैं उसमें 25% सुक्रोज और 75% वाटर्स होते हैं, ठीक है। तो जो वर्कर्स होते हैं भी वो शक करते हैं इस नेक्टर को एंजाइम्स व्हाट इज़ प्रेजेंट इन दी सलाइवा, और उसमें जो एंजाइम
होता है इन्वर्टेज, वो प्रेजेंट होता है स्लाइवा में हनी के, और वो उसको कन्वर्ट कर देता है नेक्टर को इन्वर्ट शुगर्स में, और वहाँ से फिर हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, और 80% हीट के थ्रू हम लोग उसके फर्मेंटेशन को अवॉइड करके हनी कॉम्ब में से हनी को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो नेक्टर्स इन फ्लावर्स, nectar is collected by the honey bee, stored in the bee hives, और honey is extracted from the bee hives। ठीक है, सो यहाँ से हम इसको ऑप्टेन कर लेते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और दी माल्टोज, इन्वर्टेज, दीज आर दी मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पर्टिकुलर हनी। ग्रेन्यूलेटेड हनी बोलते हैं क्रिस्टलाइज्ड डेक्सट्रोज को। रिसोर्सिनॉल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो ये रेड कलर प्रोड्यूस करता है। जनरली यूज्ड एज अ स्वीटनिंग एजेंट, एंटीसेप्टिक and applied on burns and wounds, vehicle for the several preparations। now इसकी बात करेंगे तो न्यूट्रास्यूटिकल्स के फॉर्म में भी यूज़ करता है। इट कैन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और द मिनरल्स। इट कैन ऑल्सो यूज टू हील द वुंड्स, नरिश टू स्किन। वेट लॉस में यूज़ करते हैं। सब्सटीट्यूट होता है शुगर्स का। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। एथलेटिक्स परफॉर्मेंस में यूज़ करते हैं। गुड सोर्स होता है एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का, और मेंटेन करता है ब्लड शुगर लेवल को। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द हनी। थैंक यू।